to help you understand how citizens can effectively raise grievances and seek solutions through government grievance redressal mechanism. And in this session, you will learn how to file online complaints, draft effective applications, track complaint status, and escalate unresolved matters to higher authorities. We will also cover important police related remedies regarding what to do when an FIR is not registered. The theme of today's session is from complaint to resolution, empowering citizens through Jan Sunwai. I encourage all of you to actively participate and make the most of this learning opportunity. Thank you, and let's begin with the session. So, I would request Advocate Prince Savana, sir, to please begin the session. Thank you so much, ma'am. Thank a very good morning to all of you. Say good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Okay, fine. So we will start today's session. First of all, I would like to tell you about myself. My name is Prince Savana and the proud founder of the Noida Legal Service Trust. So, first of all, tell me one thing. Is there anybody who is unable to understand English or who came from the village areas? Because a lot of people, a lot of student we have who came from the village areas and doesn't understand the English language. So what we will do, we will do this session in both the languages, in English as well as Hindi, so that everyone can understand better. Okay. Ultimately, today's session is all about the complaints. You all are law student. Most of you are completed your law degree. Most of you are already enrolled advocates, and some of you are students also. So tell me, how many of you are students? Just a thumbs up in the screen. First, second, third year, no matter in any years. Okay, fine. Great. And I also want to mention one thing. Please do not raise your hands in between. If you have language barrier or language issue. So what we will do, I can make this session in both the languages. We will also use Hindi as a language, as a secondary language. अल्टीमेटली जो मेन मोटिव है इस सेशन का वो ये है कि आपको समझ में आए। आई डोंट वांट कि जस्ट हम यहाँ पे आए, सेशन लिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। आई रियली डोंट वांट दैट। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया है, तो योर टाइम इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल एंड माय टाइम इज़ ऑल्सो। I have a meeting at 12 o'clock, so we will try to conclude this session in next 50 minutes. अब I want to know that कि how many of you are enrolled advocates or complete your law degree? Advocates Madhu, Mushkan Mittal, Advocates Madhu, Jasprit Kaur ma'am. Okay, fine. ये जो पोर्टल आज हम सीखने जा रहे हैं, ये हर एक स्टेट के अलग-अलग होते हैं। What we will do today, we will pick out a portal of Uttar Pradesh government. ऑल्सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जसप्रीत मैम ने आपको दे दिया है, वॉट दिस प्रोडक्ट, हाउ दिस पोर्टल वर्क्स। ये एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट अथॉरिटी के बीच में। सपोज यू डिड अ कंप्लेंट अबाउट अ पुलिस ऑफिसर बिकॉज ही इज नॉट फाइलिंग योर FIR. Suppose you are doing a complaint to not a police officer, but this time you are complaint to the Noida authority or any authority of your state, municipal corporations. सपोज एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जहाँ पे घर है, आपके घर के सामने पानी भरा रहता है हर टाइम, रोड्स अच्छी नहीं बनी हुई हैं, और पर्सनली एज अ लॉ स्टूडेंट आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मॉरली भी कह लो, एथिकली भी कह लो,
कि आप अपने एरिया को एटलीस्ट डेवलप कराएं, बिकॉज यू आर द एजुकेटेड पर्सन इन योर फैमिली, इन योर लोकेलिटी, इन योर विलेज, इन योर सिटी। और मेरा ये मानना है कि एज एन एडवोकेट, अगर आपको एज एन एडवोकेट नहीं, एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आपको कंप्लेंट्स लगानी नहीं आती, कंप्लेंट्स करनी नहीं आती, सो दिस इज नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। सो आज हम सीखेंगे कि कंप्लेंट्स को कैसे लगाया जाता है, कैसे कंप्लेंट्स की जाती हैं। एक चीज मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, आप में से जो कोई भी जस्ट द सेक ऑफ सर्टिफिकेट इस सेशन को ज्वाइन करे हुए हैं, वो अपने नाम कमेंट्स में मेंशन करे, और चाहो तो अभी इस सेशन को लीव कर सकते हो। आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आपको मिल जाएंगे, नो इशू। बट अगर आप एक्चुअल में सीखने आए हैं, आप चाहते हैं कि आज इस नेक्स्ट 50 मिनट्स में आपका कुछ बेनिफिट हो, आपकी कोई स्किल एनहेंस हो, तो बहुत ही काम तरीके से नेक्स्ट 20 मिनट्स मुझे अच्छे से सुनेंगे। आफ्टर दैट एक Q&A सेशन होगा, वहाँ पे आपके क्वेरीज ली जाएंगी। अब जब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, तो व्हाट आई वांट अ फेवर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। 53 मेंबर्स, सॉरी 58 मेंबर्स इज हेयर राइट नाउ, इवन अभी कुछ और मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे आफ्टर सम टाइम। तो आई वांट कि आज मैं जो कंप्लेंट यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, आप सभी अपने 20-25 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी इस कंप्लेंट को लगाने में अभी आप सीखोगे, सेम कंप्लेंट सेम तरीके से आप सभी को भी करनी है, थ्रू योर ओन फ़ोन नंबर, थ्रू योर ओन मेल आईडी। इस कंप्लेंट को करने का सिर्फ इतना इशू है कि जब बल्क में कंप्लेंट जाती हैं ऐसे पोर्टल्स पे, तो उन पे जो कार्रवाई होती है वो थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। दैट्स व्हाई आई वांट कि वी हैव अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हियर। इवन अगर आप सभी की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जो फर्स्ट टाइम आज आप कंप्लेंट लगाओगे इस सेशन के बाद, और वो सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो नेक्स्ट जब भी हम कभी आईजीआरएस का कोई क्लास लेंगे, या फिर वी हैव अ लीगल फैमिली हियर इन द एनएलएसटी, सो हम सभी उस पर्सन के बिहाफ पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और उस आईजीआरएस को, उस कंप्लेंट को हम भी अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहले आप सभी थम्स अप कीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो। व्हाट आई वांट कि आप सभी इसको सीखें अच्छे से। आफ्टर दैट आप सभी इसको एग्जीक्यूट करें ऑन द बिहाफ ऑफ योरसेल्फ, ऑन द बिहाफ ऑफ मी। यू कैन आल्सो मेंशन माय नेम आफ्टर योर नेम। ओके, फाइन, गुड। और अभी 11:13 हो रखे हैं। आई विल ट्राई कि 11:40-45 तक इस पूरे पोर्टल की जानकारी आपको अच्छे से दे दी जाए, अच्छे से आपको सिखा दिया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, वी विल एग्जीक्यूट इट। सो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा हमें कोई जल्दी है या हमें कुछ भागना है यहाँ पे। मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए। Okay, so please confirm me, am I audible to all of you? Yes, sir. Sir. Fine, fine, fine. So we will execute the session now. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हर स्टेट का एक अलग पोर्टल होता है जहाँ पे कंप्लेंट्स को किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं यूपी के। यूपी के अंदर जो पोर्टल है उसका नाम है जन सुनवाई। सिंपली आप जन सुनवाई डाल देंगे, अदरवाइज जनसुनवाई.up.nic, वो अपने आप ही आपको फर्स्ट वेबसाइट में मिल जाएगी। अच्छा, हर एक स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश को लें, तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। बट व्हाट वी विल डू, you have to click these 3 dots. After that, here you can see translate. Then you have to click on English. इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा पोर्टल है वो एक ऐसी लैंग्वेज में आ जाएगा जिस लैंग्वेज को आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते हुए जा रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश, है ना? इवन आप में से कुछ हिंदी मीडियम से भी होंगे, आई ऑल्सो नो दैट। सो वो हिंदी में कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, आप बेटरली उसे समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज़ कंप्लेंट रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट स्टेटस, कंप्लेंट रिमाइंडर और योर फीडबैक।
सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि जो हमने कंप्लेंट ऑलरेडी यहाँ पे लगाई हुई है, उनका क्या स्टेटस है? क्या एक्चुअल में जो कंप्लेंट्स लगाई उन पे कुछ कार्रवाई हुई, नहीं हुई? क्या ये पोर्टल टाइम वेस्ट तो नहीं है? क्या मैं आपका टाइम खराब तो नहीं कर रहा? First of all, we will see that. Okay, fine. So again, we will translate it. Now it is visible to all of you. Track complaint. See, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं. That is not a big deal. I am not restricting anyone. Doubts भी हो तो definitely मेक श्योर करें कि थोड़ा वेट कर ले फॉर द Q&A सेशन. बट अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको ऑन द स्पॉट ही बोलना जरूरी है, तो आई एम अलाउइंग ऑल ऑफ यू टू इंटरप्ट इन बिटवीन. दैट इज ऑल्सो फाइन. वॉट आई वॉन्ट कि आज आप सीख के जाएं. दैट इज द ओनली motive of this class. Here I do the number, then I need a complaint number also. So what complaint number? See, complaint number के लिए we will definitely शायद मेरे पास में complaint होगी. Just see once. HRS. So this is an complaint number जो कि IGRS पोर्टल के थ्रू हमने ऑलरेडी किया हुआ है. सो सबसे पहले इस कंप्लेंट नंबर को हम यहाँ पे डाल देते हैं. So screen is visible to all of you. Please confirm once more. Yes, sir. Yes, sir. से आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छूटे. एक बार आप नंबर बोल के बताएंगे सभी मुझे. एनी ऑफ यू. Sir, the number is 400141264004448. एंड द कैप्चा कोड इज D2BP5H. सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आपने वो सर code गलत डाला है सर. कंप्लेंट नंबर गलत डाला है हाँ सर 444 डाल दिया आपने. सर. 444 आएगा. ये मैंने जानबूझ के किया था. आई चेकिंग कि आप कितने एक्टिव हो क्लास में. सर कैप्चा भी गलत है. ओके 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 वेट. ये जानबूझ के नहीं किया था. सो ओके फाइन. दिस इज अ कंप्लेंट एंड इस कंप्लेंट के जैसे हम नीचे आते हैं. सो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि कंप्लेंट का जो एक एक जो सिनेरियो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन हुई है सारी चीज़ें, और कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है. ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट डाल दी और 2 3 4 5 6 महीने 7 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पे. सो दिस इज द प्रूफ कि ये जो पोर्टल है ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अच्छे से काम कर रहा है. अब आदेश क्या दिए गए हैं इस कंप्लेंट को लेके, एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं. सी यहाँ पर शिकायत द्वारा असंतुष्टि फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुण्य परीक्षण हेतु प्रेरित. ठीक है. अब यहाँ पे हुआ क्या, ये प्रॉपर आपको कॉल करेंगे. प्रॉपर आप अच्छा आप थोड़ा बड़ा करता हूँ सो दैट आप भी इसे थोड़ा पढ़ सके. ये आपको प्रॉपर कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपकी शिकायत का समाधान है वो हुआ है नहीं हुआ है. इवन आपने कोई कंप्लेंट यहाँ पे की हुई है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि उसका जो समाधान है वो होना ही होना है. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जो कि एक लंबे प्रोसेस के बाद ठीक होनी होती हैं. जैसे सपोज करो कि कोई ऐसी रोड है जो बहुत सालों से बनी ही नहीं है कभी, तो उसके लिए अलग से एक फंड पास किए जाते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. आज हम ऐसी ही शिकायत पे बात करेंगे. एक ऐसी ही कंप्लेंट को हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे जिसमें ऑलरेडी टाइम लगने वाला जो प्रोसेस है उसकी वजह से हमने एक बार कंप्लेंट डाली हुई है सेम चीज़ पर, वो सेम कंप्लेंट हम एक बार और डालेंगे बाद में.
ओके फाइन। अब यहाँ से अभी कोई डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, है ना? प्रिंट करे है, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ से कोई आदेश जो हम यहाँ से डाउनलोड कर सके, अभी ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। तो डेफ़िनेटली इससे नहीं होगा, वो हम बैक करेंगे। मोबाइल नंबर से शिकायत को, देन यहाँ से हम इसे कर देंगे बैक। होम पे जाते हैं। ओके। अच्छा, मैं आपको ना इसे अनुसरण भेजिए एक सबमिट में, पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ इंग्लिश में। एक सेकंड, ट्रांसलेशन पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। इट्स ओके, फिर से ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट को। ओके फाइन। अब अगर यहाँ से जो ये लेटर है ये प्रिंट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने लेटर यहाँ से प्रिंट कहाँ से मिला मुझे लेटर, जिससे हमने अभी कंप्लेंट चेकआउट किया? तो वो जो लेटर है वो कंप्लेंट स्टेटस या फिर सेट जब रिमाइंडर आप भेजते हैं तो यहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी काफ़ी टाइम पहले वो मैंने डाउनलोड किया था, सो मुझे अभी एक्चुअल में पता नहीं है उस टाइम पे कैसे हो गया था। मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ था। वेट, वो भी थोड़ी बहुत देर में अभी चेकआउट भी कर लेंगे बाद में। एक सेकेंड। सो ये लेटर यहीं से ही हमने डाउनलोड किया है, इसी वेबसाइट के थ्रू। सो सबसे पहले आप जिस भी अथॉरिटी में अपनी कंप्लेंट लगाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखा आएगा ऊपर। देन जो ये कंप्लेंट थी ये एडवोकेट विकास सर और मैंने मिलके लगाई थी, सो हमारे यहाँ पे नाम होंगे प्रॉपर। देन IGRS का नंबर, देन कंप्लेंट की जो भी उन्होंने अपनी तरफ से उस पर कार्रवाई की, जैसे पोर्टल द्वारा ग्राम मजगपुर में जल सीवर एवं नाली का कार्य कराने की मांग की गई थी। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रशासन सड़क पर अभी तक जल एवं सीवर की लाइन नहीं डाली गई है। इस संबंध में जलखंड को उक्त गलतियों में जल एवं सीवर की लाइन डालने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। अल्टीमेटली जो हमने कंप्लेंट लगाई थी प्रॉपर उस पे ये शो कर रहे हैं कि हम आपने कंप्लेंट लगाई, हमने उस पे कार्रवाई की, और ये प्रॉपर लेटर साइन होते हैं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग सिविल 9 नोएडा। आप चाहो तो इनके पास कॉल करके इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से आप जानकारी भी ले सकते हैं। इवन सेम पोर्टल से आपके पास कंप्लेंट्स भी आएंगे, कंप्लेंट नहीं सॉरी, आपका एक पास कॉल्स भी आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंप्लेंट का रिजोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दिस इज़ फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्लेंट्स को करना कैसे है और इन कंप्लेंट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके फाइन। ये आप अपने आप पढ़ लीजिए, बिकॉज इसमें ये लिखा हुआ है कि आप किस तरह की कंप्लेंट्स यहाँ पे नहीं दर्ज करा सकते। ओके, जैसे कि आप अगर कोई सिविल सर्वेंट हो तो आप अपने ट्रांसफ़र वगैरह के मैटर यहाँ पे नहीं लिस्ट कर सकते हैं। आप कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पे नहीं आ जा सकते हैं। ओके, तो बेसिक चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से रीड आउट कर लें। ओके फाइन। सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना बहुत ईजी है। आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो सिंपली जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ओके फाइन। अब यहाँ से आगे हम जो भी प्रोसेस करेंगे, आई वांट कि आप सभी उस प्रोसेस में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और आप ही बताएंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे एक अपर हैंड दूंगा आप सभी को, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लॉ स्टूडेंट, तो कंप्लेंट्स वगैरह करना आपको आना चाहिए। इवन आप इतने कैपेबल हो कि आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अपनी। सो सिंपली OTP एक बार लॉग इन कर लेते हैं, इसके बाद फिर आई विल गिव यू अ चांस टू डू ऑल द थिंग्स। Is it screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे, बिकॉज लैंग्वेज इंग्लिश में ही ईजी होता है भरना सारी चीज़ों को। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं, सपोज करो आप दिल्ली के अंदर दर्ज करते हैं कोई भी कंप्लेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल पे,
तो आप प्रेफर करें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में करें। सपोज करो कि आप यूपी के अंदर कोई कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं, तो यूपी के अंदर जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब हिंदी में होती हैं, तो कोशिश करें कि आप चैट जीपीटी के थ्रू या किसी और एआई टूल के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को हिंदी में कन्वर्ट करा के ट्रांसलेट करके उसके बाद ही यहाँ पर दर्ज करें। ओके, अब सिंपली यहाँ पे नाम डाल देते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम जो आगे की चीज़ें हैं उन पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, इसको हम डालते हैं ग्रुप। अच्छा, अगर आप ग्रुप में डाल रहे हैं ना, सपोज करो कि कोई ऐसी कंप्लेंट है जिसमें आपके अलावा आपकी पूरे जो सोसाइटी के पर्सन है सभी उससे परेशान है, तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप ग्रुप ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे आपको फादर नेम एंड ऑल जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। यहाँ पे डाल देते हैं सेम। यहाँ पे सेकंड मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहो तो डाल लो, अदरवाइज नो इशू। यहाँ पे आपकी मेल आईडी डाल देते हैं, मतलब अपने आप को डालनी है। नाउ आई एम यूजिंग माई मेल आईडी। ओके फाइन। अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अल्टीमेटली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक वही कंप्लेंट वापस यहाँ पे डाल रहे हैं बिकॉज उस कंप्लेंट पे कार्रवाई तो हुई, बट अगर आप इन सारी चीज़ें हो गई हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, लास्ट मंथ हो चुकी हैं सारी चीज़ें, बट व्हाट आई वांट कि थोड़ी कार्रवाई और तेज़ी से हो। इस वजह से हम एक आईजीआरएस मैं अभी यहाँ पे पुट आउट करूँगा और यही सेम आईजीआरएस आप सभी को पुट आउट करनी है सेम पोर्टल पे। तो व्हाट आई वांट कि अच्छा, ये टोटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना होता पहली चीज़। जैसे कि आरटीआईज़ जो होते हैं उसमें हमें चार्जेस पे करने होते हैं। इवन जो नेक्स्ट क्लास होगी आप सभी की इन द बैच ऑफ दिस जून बैच, नेक्स्ट क्लास में आपको आरटीआई को हम लेके आएंगे फॉर द नेक्स्ट क्लास, और आप सभी को आरटीआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हाउ टू ड्राफ्ट, कैसे आरटीआईज़ लगाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अब मुझे आप ये बताइए कि जो भी हम कंप्लेंट लगाने जा रहे हैं वो किस रिलेवेंट अथॉरिटी के अंदर लगानी चाहिए हमें। वी हैव अ कंप्लेंट रिलेटेड टू रोड सीवरेज, बताइए आपके यहाँ Municipal Council. Yeah, it is Development. authority. Development. सी आप एक काम कीजिए, सभी आप मैसेज कीजिए, ऑल ऑफ यू, आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर मैसेजेस, जस्ट टाइप हियर। सॉरी, यहाँ पे एबीसी मेंशन नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे प्रॉपर अथॉरिटी का नाम लिखना है। ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुड गुड। मेडिकल कॉलेज वेट, सी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 5 ही आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इज हियर आल्सो, ठीक है। बट हमारा जो काम है वो ऊपर के डिपार्टमेंट से हो रहा है, तो वी विल यूज दिस डिपार्टमेंट्स ओनली। अब यहाँ पे जो हमारी कंप्लेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे टैग करेंगे। ओके फाइन, और जिन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा है वो क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनका लीगल एक्यूमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आफ्टर दैट कैटेगरी, अब बात आती है कि हम कौन सी कैटेगरी में इस चीज़ को लगाएंगे। कंप्लेंट रिलेटेड टू ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप सभी इसमें नहीं बता पाएंगे। जो भी लोकेशन होगी जहाँ की भी, उस पे जो अथॉरिटी वहाँ पे एक्चुअल में कार्यरत होगी उसकी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी है नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज सिलेक्टेड। अब यहाँ पे आपको कंप्लेंट की डिटेल्स डालनी है। अब कंप्लेंट की डिटेल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए पहले से ही कुछ एक कंप्लेंट्स को हमने लिख के रख लिया है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिंपल है, विषय क्या है,
ग्राम असगरपुर सेक्टर 128 नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में जनहित में ग्राम विकास कार्य सीवर सड़क रोड निर्माण। इसमें से हम सड़क और रोड अभी हटा देते हैं, इसको स्पेसिफिक करते हैं कि हमें केवल सीवर के लिए करनी है, बिकॉज अभी जो इंस्पेक्शन हुआ था वहाँ पे रोड बनाने के लिए इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें बोला गया कि सर अभी तो इसमें सीवर नहीं डले हुए हैं, तो हम इसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, कार्रवाई थोड़ी सी डिले हो गई, बट अब हम स्पेसिफिक सीवर के लिए ही IGRS को लगाएंगे यहाँ पे। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, देन नीचे आते हैं। अब एरिया कौन सा है आपका, अर्बन है रूरल है? अच्छा, आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन प्रॉपर? Yes, sir. अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही हो तो व्हाट यू कैन डू, आप इसे लैंडस्केप मोड में चेंज कर सकते हैं पूरी स्क्रीन को, सो दैट आपको फोन में भी स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो ये वाला पार्ट है जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पार्ट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये स्पेसिफिक होगा जहाँ की कंप्लेंट आप लगाने जा रहे हो। बट ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज अभी सेम कंप्लेंट आप सभी भी लगाएंगे। इवन जो ये इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आपके लिए ईजी रहे जब आप इसको भरें फॉर्म को अगेन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कंप्लेंट रिलेटेड टू नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देन जो ये एप्लीकेशन है ये आपको भेज दी जाएगी, इवन आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, दैट इज़ फाइन। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आपको केवल यही कंप्लेंट डालनी है। आपको जो आपका सेकंड सेशन के बाद जो टास्क मिलेगा, उसमें आपको सिंपली 2 IGRS डालनी होंगी। फर्स्ट IGRS इज़ दिस एंड सेकंड IGRS, बिकॉज़ वी आर एन NGO, वी आर वर्किंग फॉर द सोशल डेवलपमेंट हियर। तो पर्सनली आपको कोई भी सोशल कॉज़ ढूँढना है अपने रिलेटिव्स के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने घर के पास, अपने कहीं से भी, आप स्कूल्स में, टीचर्स, मतलब कहीं से भी आप कोई भी सोशल कॉज़ लेके आओगे और आप उसकी कंप्लेंट लगाओगे, बिकॉज़ एज़ अ लॉ स्टूडेंट आपको ये चीज़ आनी चाहिए और दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके? Sir, I just have one question. Hello. Yes, yes, yes. Sir, is there a way to file these complaint anonymously, like without disclosing the name and the email ID and numbers? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एनोनिमस तरीके से इस कंप्लेंट को लगाना क्यों चाहते हैं? बताइए। Sir, basically I'm not a resident of like Delhi or UP, so that's why that is the ओके। सी पहले मैं आप सभी को एक छोटी चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि कभी भी आप कंप्लेंट करते हैं, तो कभी भी कंप्लेंट करो अपने दम पे, अपने नाम से, बिकॉज़ आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप उस कंप्लेंट को वापस ले सकते हैं। ठीक है? सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो कभी भी इस चीज़ से ना डरें कि कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी और के नाम से कर दें या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो आपके मन में आती है काफ़ी बार आप ये चीज़ सोचते होंगे। एंड तीसरी चीज़ ये कि कंप्लेंट करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप एक सोशल कॉज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, तो अपने साथ पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी सोसाइटी को आप उसमें इन्वॉल्व कर लें। लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द विलेजर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द लाइक सोसाइटी मेंबर्स। एनोनिमस तरीके से कंप्लेंट आप क्यों करेंगे? बिकॉज़ जैसे मान लो आपने कोई कंप्लेंट की, आप अगर किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो कंप्लेंट करना आई डोंट थिंक सो कि आपको एनोनिमस तरीके से जाना चाहिए। इवन दिस इज़ ऑल्सो वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, तो वो अपने अपने नाम से करें, नो इश्यू। ओके? गॉट इट? ऑल ऑफ यू? फाइन। Yes. अब अगेन वी हैव टू फाइंड आउट दैट कंप्लेंट नंबर। हियर इट इज़।
अच्छा, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, बहुत बेसिक चीज़ है ये। बिकॉज़ इसी को आप बहुत ही एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, एक बड़े कॉज़ के लिए भी कर सकते हैं। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कि इस तरीके की एक छोटी-छोटी चीज़ें आप गलियों के लिए कंप्लेंट लगाएँ या कुछ करें, बट स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सपोज़ करो कि आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे आपने कंप्लेंट दी, बहुत टाइम हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो ये पोर्टल है बहुत हेल्प करता है। इवन जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बिकॉज़ उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है कि वो भी परेशान हो जाते हैं कि आईजीआरएस आई है, जल्दी से कुछ करो, अपलोड द मैक्सिमम 500 केबी फोटोज़ अपलोड पीडीएफ। सो यहाँ पे हमारी कंप्लेंट है, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ही नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एक ही फाइल जा रही है। 500 केबी से छोटी फाइल होनी चाहिए। वेट, इसको एक बार फाइल का साइज़ चेक कर लेते हैं। 500 केबी से छोटी फाइल ऑलरेडी। ओके फाइन, सेव कंप्लेन। सर मे भी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पीडीएफ में बना के अपलोड करना पड़ेगा इसीलिए। प्लीज अपलोड पीडीएफ जेपीजी फाइल मैक्सिमम अप टू 500 केबी, और हमारी फाइल ऑलरेडी 500 केबी से छोटी है। सर सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में लगेंगे। मैंने अभी रेज की थी कंप्लेंट इस तरीके से। ओके ओके, फाइन फाइन। तो सर मैं दूसरी चीज में ये और पूछ रहा था कि मुझे फिर से एक और रेज करनी पड़ेगी या वो मेरी काउंट हो जाएगी इसमें? आपने किस रिलेटेड फाइल अभी मतलब यहाँ पे रेंज एक्चुअली में मैंने जो रेज किया था वो मैंने रास्ता खुलवाने के लिए किया था। चक रोड पर कहना चाहिए कब्जा था एक तरीके से। बहुत बढ़िया। और आप पूरे सभी यहाँ पे बताइए कि उसका फिर क्या समाधान हुआ और आपकी हेल्प। उसका समाधान ये हुआ कि उसमें लेखपाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने उसका मापांकन कर दिया है, मतलब सीमांकन कर गई हैं। अब उस पर चक्रोट पड़ने वाला है। प्रधान जी से बात हो गई, कानून गो से भी बात हुई थी मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक लॉ स्टूडेंट हो या एडवोकेट हो? नहीं, लॉ स्टूडेंट ही हूँ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इससे पहले भी मैंने एक बार और रेज की थी, हम्म तब मेरा काम हो गया था। वो उसके संबंध में किया था। मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे, हम्म। तो उससे रिलेटेड मैंने रेज किया हुआ था। ग्रेट ग्रेट। तो अल्टीमेटली आप सभी को इससे क्या सीखने को मिलता है? एनी ऑफ यू, कि दिस पोर्टल वर्क्स वेरी वेल। यहाँ पे आपकी करी हुई कंप्लेंट की पूरी तरीके से सुनवाई होगी और डेफिनेटली आपको यहाँ से एक अच्छा रिजोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, ये सर बताइए, बोलिए बोलिए। अभी आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे थे, वो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर, डू यू वांट टू रजिस्टर दैट? यस। सर इफ अगर कोई महाराष्ट्र से हो तो वो इस पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, तो उन्हें कैसे समझेगा कि उनके सिचुएटेड स्टेट का कंप्लेंट पोर्टल कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके वहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल क्या है। क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट ने ना अलग अलग बना रखे हैं। किसी को जन सुनवाई के नाम से जाना जाता है, किसी को कुछ। सी, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, ये pgportal.government.in है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर आपके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिलेगी। महाराष्ट्र के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रीवेंसेस, ट्रैक ग्रीवेंसेस, रिमाइंडर्स। सी, यहाँ पे भी आप अगर चेकआउट करेंगे तो सेम ही चीज़ें हैं।
Is this visible to you? Yes, sir. What is your name? Bansi. Fine. इवन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल को देखेंगे तो भी वो भी आपको बहुत बेटर लगेगा. दिस इज ऑल्सो द सेम. इवन हर गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं वो मोस्टली सेम ही है. रजिस्टर्ड लॉगिन, व्यू स्टेटस, कॉन्टैक्ट एंड ऑल. ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी. ग्रीवेंसेस, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, लॉज पेंशन, लॉज स्टेटस. ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको और आप चीज़ों को देख पाएंगे. जैसे हम इस पे कंप्लेंट को फाइल कर रहे हैं, एक एरर आ रहा है, एरर 500. तो अभी के लिए इस एरर को चेकआउट कर लेते हैं किस तरीके से लिए आ रहा है. एक तो यहाँ पे अभी कोई कुछ ऐसे वर्ड्स बच गए हैं इसके अंदर जिसको ये इसमें से शो आउट कर रहा है. तो इनको निकालने के लिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दे करना पड़ेगा. एक बार आप भी चेकआउट करो कि आपको कुछ ऐसे सिंबल्स दिख रहे हैं इसमें. सर ये अतः में सर हलंत लगा हुआ है सर, वो वाला हटा दीजिएगा. और सर ये जो है के बाद जो हलंत वो है ना सर, ये भी हटा. हाँ जी, ये भी हटा दीजिए. और अतः जो है ना उसमें भी वो लगा हुआ है हलंत. Let's check out once more. Again the same thing is there. इस चीज़ को करने के लिए ना अभी मैंने जस्ट इसको चैट जीपीटी पे भी डाला था. अगेन डाल देते हैं. रिमूव ऑल द स्पेशल. अच्छा, एआई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल है. तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप सभी एआई की हेल्प लेना स्टार्ट करें, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करें कि हम एआई को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसे यूज़ में ले सकते हैं. सो एक सेकंड, इसको एक बार चेकआउट करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं. देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हुई है नहीं. अभी भी सेम एरर इज देयर. कभी कभी क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं ये एक बार एरर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं. तो चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली इतना भी लिखा है तो भी इसमें भी ये शो कर रहा है इस चीज़ को. अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट टू टेक प्रॉपर एक्शन. एक काम करते हैं, इसे बहुत शॉर्ट में लेके आते हैं. इवन कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, रेफरेंस नंबर मैंने डाल ही दिया है उसमें. सो सिर्फ इतना पार्ट उठाते हैं. अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं इनमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ एरर्स आ जाते हैं. एरर्स मतलब कि या तो इनका सर्वर डाउन चल रहा होता है. ये मोस्टली गवर्नमेंट साइट्स में आपको देखने को मिलेगा ही. इवन अगर मैं इसी सेम कंप्लेंट को फिर से लॉग आउट करके फिर से डालना स्टार्ट करूँगा तो डेफिनेटली ये डल जाएगी 101%, बिकॉज पहले भी काफ़ी बार डली है कंप्लेंट्स. अभी हम क्या करेंगे, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए इसको आराम से बाद में डाल लिया जाएगा कंप्लेंट को. और ये जो छोटे छोटे इशूज़ आते हैं इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स में, ये आपको अपने हिसाब से ही कुछ चेकआउट करने हैं और उसका रिजोल्यूशन भी ढूंढना है. बिकॉज यहाँ पे सिंपली हर चीज़ें मेंशन की हुई होती है. अगर आपको कभी ऐसा आपके जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे आपको एरर्स आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा. आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा.
लॉग आउट करके, और फिर से फिर से स्टार्ट करनी पड़ेंगी सारे प्रोसेस को। ओके, तो अल्टीमेटली अब हम इसे बार बार नहीं करेंगे बिकॉज टाइम कम है क्लास में। और व्हाट आई वांट कि अब थोड़ा Q&A सेशन ले लेते हैं आप सभी के साथ। सो अगर आप में से कोई चाहता है कि इसे कंप्लीट किया जाए तो दे कैन ऑल्सो टेल अस, या आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो जो नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट संडे, उस पर इस चीज़ को फोकस किया जाएगा। सर यस सर मुझे पूछना था सर, मैं कोलकाता से हूँ, तो इसको प्योरली पूरा यहाँ पे बंगाली चलती है भाषा, ठीक तो बंगाली में ट्रांसलेट करके पूरा कंप्लेन देना होगा। सी एम आई ऑडिबल टू यू? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपने कॉलेज का नाम, अपना स्टेट, देन फिर आप बोलना स्टार्ट कीजिए सो दैट आई ऑल्सो नो। सर माय नेम इज श्वेता साव सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। Sweta, you all doing internship since I think हाँ सर, लॉन्ग टाइम से, आई थिंक फरवरी से हूँ सर। और आप बहुत ही डेडिकेटेडली सारी क्लास भी अटेंड करती हैं। यस सर। सर थोड़े एग्जाम्स चल रहे थे मई मंथ में, तो थोड़ा मिस आउट हुआ था। अभी तो जो है डेली के आपके कर रहे हैं। No, Sweta, I Yes. your DP also. Yes, Sweta. Ask your doubt. यस सर। Yes, ask your doubt. ये सर पूछना था कि यहाँ पे बंगाली में सारी चीजें, जैसे कि कोई भी केस फाइल होता है, मैं मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा चुकी हूँ हावड़ा में, वहाँ पे केसेस ज्यादातर बंगाली में लिखे होते थे, हिंदी में बहुत कम होते हैं। तो वही पूछना था सर, ये जो कंप्लेन है ये बंगाली में ही ट्रांसलेट करके देना होगा ना? Yes. जो भी आप Okay, sir. स्टेट गवर्नमेंट लैंग्वेज फॉलो करती हैं ना, आपको उसी में ही देनी है। सर एक्चुअली थोड़ा बंगाली में मेरा अंडरस्टैंडिंग लेस है, दैट आई एम नॉन बंगाली, मैं बंगाली नहीं हूँ, इसलिए हमें यूपी से ही है सर। ओके, तो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट बंगाली में कुछ कुछ वर्ड्स है जो समझ नहीं आती है, सो बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कंप्लेन। आपको हिंदी अच्छे से आती है? सर हाँ आती तो है सर, बट हाँ कुछ वर्ड्स है जो प्योर हिंदी में होती है, वो थोड़ा समझ में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा हो कंपैरिजन टू बंगाली। ओके, एंड श्वेता, जो यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है इस क्लास में, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो आपको एक्चुअल समझ में आती हैं सारी चीज़ें? यस सर, समझ आती है, मुझे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ आती तो आई विल आस्क यू सर। ओके ओके फाइन। एंड वो आपका जो सर ये मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई इंटर्नशिप बार बार ज्वाइन किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, एंड थैंक यू टू सर फॉर टीचिंग अस एंड फॉर गाइडिंग अस, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। थैंक यू, ये सब है। Good morning, sir, and thank you, sir, for giving me opportunity to speak. Sir, I have a general query, and I'm just speaking casually. If you don't mind, may I, with your permission, sir? Sir, I have been thinking about. Sorry, sir. आपको पोर्टल से रिलेटेड कुछ है भी, या फिर आपकी कोई जनरल क्वेरी है? Sir, it's a general query. ठीक है, पूछिए। May I, sir? Yes. Sir, I have been thinking about something lately.